بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کا تجارتی خسارہ تاریخ کا بلند ترین ہم نے دیکھا کہ اگست کے مہینے میں آیا اور لگ بھگ جو ہے 4 ارب ڈالر سے قریب کا جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اس کو لے کے کل سے جو ہے بہت زیادہ لوگوں نے جو ہے شور مچایا اور کافی لوگ جو ہے وہ کوشش کی کہ جو ہے مایوسی پھیلائی جائے اور ایک امیج بنانے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان میں جب شرح نمو بڑھتا ہے تو پاکستان کا تجارتی خسارہ بھی بڑھتا ہے اور پھر پاکستان کے خزانے خالی ہو جاتے ہیں، اور جب پاکستان کے خزانے خالی ہوتے ہیں تو پھر پاکستان میں بدحالی آتی ہے، شرح سود بڑھتا ہے، روپے کی قدر میں گراوٹ آتی ہے، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس پہ ہم ہمیشہ سے نشاندہی کرتے رہیں، اور آج میں آپ کو جو ہے کچھ اپنے اس پہ نئے ویوز دینا چاہوں گا۔ پاکستان میں ہمیشہ یہ کیوں ہوتا رہا، اور میں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آپ سے بات بولی کہ جب الیکشن کا وقت قریب آتا ہے تو پاکستان میں یہ چیز ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور دوسرا اگر کوئی عالمی معیشت میں کوئی تبدیلیاں رونما ہو تو پاکستان جیسا چھوٹا ملک جو ہے ان تبدیلیاں جو رونما ہوتی ہیں اس میں پاکستان جیسے جو چھوٹے ممالک ہوتے ہیں ان کی معاشی تباہی جو ہے آ جاتی ہے۔ کچھ اس طریقے سے بھی ہو رہا ہے اور کچھ ہماری معاشی سرگرمیاں بھی ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ ہماری شرح نمو جو ہے وہ 4.5% جب اس سال کے نمبر فائنل ہوں گے تو اس سے اوپر ہو سکتی ہے، نیچے نہیں ہو سکتی۔ جس سال ہم بیٹھے ہیں اس میں جو ہے ہماری شرح نمو جو ہے 5% سے اوپر جانے کی توقع ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے شرح نمو جب اوپر جاتی ہے تو ملک کا درآمدی بل بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر ہمارا خسارہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ عالمی مارکیٹس میں اس وقت بہت زیادہ تیزی ہے، اور وہ اس کی تیزی کی وجہ یہ ہے کہ کرونا کے بعد جو ہے وہ ممالک کھل گئے ہیں اور وہاں پہ جو ہے ایک دم ان کی ڈیمانڈس آنا شروع ہو گئی ہیں، تو وہ جو ہے وہ بھی ایک وجہ ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اور پھر ہم اپنی بات کو آگے لے کے چلیں گے۔ پام آئل، جو کروڈ پام آئل ہے، جو یعنی کہ ہم جو کھاتے ہیں کروڈ حالت میں، اس وقت وہ $1217 پہ چل رہا ہے، اور جو ایک سال پہلے اس کا ریٹ تھا $700 تھا، اور اس سال کی جو رینج بنی اس کی 700 سے $1355 ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے گندم جو پاکستان میں بہت زیادہ جسے کہتے ہیں اس وقت مہنگی ہوئی ہے، دنیا میں بھی اس کے جو ہے حشر نشر ہوا ہے۔ $711 پہ ٹریڈ کر رہی ہے اس وقت گندم، اور پورے سال کی جو اس کی رینج ہے $533 سے لے کے $774، تو یہ بھی ایک بہت بڑا نمایاں اضافہ ہے۔ پھر دھات جسے کہتے ہیں کاپر، وہ بھی اس وقت جو ہے اپنے جو ہے ہائی پہ چل رہی ہے، $4.28 پر آؤنس۔ اس کی رینج جب سال شروع ہوا تو 2.88 تھی، یعنی کہ آپ سوچیں کہ 50% یہ بھی بڑھ گئی ہے۔ پھر برینٹ آئل، یہ جو تیل جو ہم پیٹرول جو کروڈ آئل ہوتا ہے، $71 پہ چل رہا ہے، ایک سال پہلے $35 تھا۔ پھر لنڈن گیس آئل، یہ جو LNG وغیرہ کے بھی بارے میں آپ سنتے ہیں، LNG تو نہیں ہے لیکن لنڈن کی گیس آئل کا بھی ایک انڈیکس ہے، اس وقت وہ $599.98 چل رہا ہے، سال پہلے وہ $286 تھا۔ پھر US کارن، یہ $519 پہ چل رہا ہے، سال پہلے $343 تھا۔ لائف کیٹل، یہ جو ہم گوشت وغیرہ کھاتے ہیں، پاکستان میں تو ہم خوش نصیب ہیں کہ اتنا زیادہ نہیں بڑھا، باہر جو ہے وہ بھی 25% بڑھ گیا ہوا ہے، $127 پہ چلا گیا ہوا ہے جو $102 تھا۔ پھر US کاٹن، یہ جو ہم کپڑا پہنتے ہیں، کاٹن بھی لگ بھگ 50% بڑھ گئی ہے، $63 سے $92 پہ چلی گئی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارا جو اس تجارتی خسارے میں ہماری جو شرح نمو بڑھنے کی وجہ سے ہمارا تجارتی خسارہ بڑھتا ہے، تو یہ میرا مقصد آپ کو یہ چیزیں بتانے کا، یہ اسکرین پہ بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے اس کے گرافس اور ٹیبل لگائے ہوئے ہیں۔ یہ جو ہے پاکستان کا تجارتی خسارہ جو ہے پاکستان کی گروتھ کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ ہوا ہے عالمی مارکیٹ میں ایک تیزی کی وجہ سے۔ لگ بھگ پاکستان کا جسے کہتے ہیں کہ مہینے کا $6 ارب کا بل ہے، جس میں جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ 60% سے زیادہ پاکستان کی درآمدات میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ان چیزوں سے بنتی ہیں ان کی قیمتیں بھی اسی طریقے سے بن گئی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک کچن جو ہوتے ہیں کمرشل انڈسٹریل کچن، اس کی قیمتوں کا جو ہے 50% زیادہ اضافہ ہو چکا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے
एग्जॉस्ट फैन, जो चीज़ जिसमें धात में स्टील लोहा वगैरह इस्तेमाल होता है, उनकी कीमतें 50-50% से बढ़ गई हैं। इवन जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें उनकी बढ़ चुकी हैं। अच्छा, ना सिर्फ ये हुआ बल्कि इसके अलावा जो है आलमी मईशत में जो 100 सालों में नहीं देखा गया, फ्रेट इंडेक्स, जो माल बरदार जहाज हैं उनकी कीमतें भी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। कल मैं डाटा मंगवाया था, बाल्टिक इंडेक्स, ड्राई इंडेक्स, एक होता है कि जो दुनिया में जो आमदोरफ्त होती है इन जहाज़ों की, उनकी कीमतों में कितना फ़र्क आया है। तो वो इंडेक्स जो है $1500 एक साल पहले था, अब वो जो है $4000 पे पहुँच चुका हुआ है। तो अब उससे अंदाज़ा लगाएं कि आलमी तौर पे किस तरह ये आग लगी हुई है। अच्छा, ये पाकिस्तान के अलावा इवन जो अमीर ममालिक हैं, अगर आप गूगल करें, और मैं आपको कहूँगा कि आप गूगल करें और उसमें लिखें इन्फ्लेशन इन यूएस मई जून जुलाई, इन्फ्लेशन इन यूरोप, इन्फ्लेशन इन ये जो दूसरे ममालिक हैं, ये जो सस्ते ममालिक, जो छोटे ममालिक हैं, अफ्रीका, इंडिया वगैरह, तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस परेशानी के आलम से और किस कर्ब से दुनिया गुजर रही है। तो हमारे यहाँ पे जब मीडिया में चीज़ें पेश की जाती हैं तो एक तो ये कि बाहर का पस मंज़र नहीं दिया जाता और सारा का सारा इल्ज़ाम जो है हुकूमत वक्त पे लगा दिया जाता है। आप मुझे बताएं कि खुर्दनी तेल हो, चाहे खाम तेल हो, चाहे लोया हो, चाहे ये चीज़ें जो हैं पाकिस्तान बाहर रेट तयन नहीं करता। LNG की मिसाल ले लें, $6 की आज से 6 महीने पहले मिलती थी, अब वो $20 की भी नहीं मिल रही। तो ये हमारे तिजारती खसारा में आ रही है। फिर एक और चीज़ हम तिजारती खसारे में जो है आ रही है हमारी, वो आ रही है वैक्सीन। एवरेज $150 मिलियन से ज़्यादा, हमारे कोई $1.5 अरब वैक्सीन पे खर्च होगा। अब जो बात कहना चाह रहा हूँ, जो सबसे अहम बात है, वो क्या कहना चाह रहा हूँ, वो बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आया ये कीमतें हमेशा ऐसी ही रहेंगी। बहुत सारे लोग हमारे जो एनालिस्ट हजरात हैं, जो अखबारों में लिखते हैं, जो टीवी में बैठते हैं, वो ये समझ रहे हैं कि ये परमानेंट फीचर है। ऐसा नहीं होता। ये कीमतें जो हैं एक वक्त में बहुत आसमानों को छूती हैं, जैसे एक टाइफून आता है, जैसे एक सैलाब आता है, तो फिर उसके बाद जो वो आसमान से जो एकदम ही नीचे भी गिरती हैं। जो वो वक्त को गुजार जाता है वो होता है बादशाह। ठीक है, हम माजी में इस वक्त को नहीं गुजार पा रहे थे और हम क्या करते थे कि कई अवाम से गालियां ना पड़ जाए और वक्ती तौर पे उनसे गालियों से बचने के लिए या बुरा भला वो ना कहें, हम जो है कीमतों में इस्तेकाम लाने के लिए हुकूमत जो है खसारा बढ़ा देती थी, अपने खजाने जो है ख़त्म कर देती थी और फिर उसके बाद हम IMF प्रोग्राम में जाते थे। इस हुकूमत ने अवाम को जितना बचा सकती है वो बचा रही है। जैसे अभी पेट्रोल की कीमतें 2 दिन पहले ₹1.5 हुकूमत ने कम कर दिया और 17% की जगह 10.5% सिर्फ सेल्स टैक्स लिया। और जो PDL जो है, जो ₹20 से ऊपर, जो आज से साल पहले जो पेट्रोलियम लेवी हुकूमत आपसे ले रही थी, वो सिर्फ ₹2 पर लीटर ले रही है। तो हुकूमत जितना अवाम को बचा सकती थी, लेकिन उसके बाद एक हद के बाद उसके बस से भी बाहर होती है चीज़ें। लेकिन अच्छी चीज़ क्या हो रही है, हमारे जो गवर्नर स्टेट बैंक है रजा बाकिर, उन्होंने फैसला किया हुआ है कि अगर ऐसी चीज़ें चेंज होंगी तो मार्केट उसका जो है खुद तयन करे। एक्सचेंज रेट हमारा जो है 153-54 से 167 रुपीज़ चला गया, लगभग 10% हमारा एक्सचेंज रेट गिर गया है, डी वैल्यू हो गया है। अब लोग इसको कोई कह देते हैं हुकूमत की नाकामी, कोई कहता है क्या। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त हमारे ऑल टाइम हाई रिजर्व्स हैं। लोग कहते हैं ये रिजर्व्स क्या संभाल के क्यों रखे हुए हैं? ये इसलिए संभाल के रखे जाते हैं कि अगर आपकी अदायगियों में ताखीर ना हो, आपने कर्जे लिए हुए हैं। दूसरा, अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो जाए जो अवाम के बस से बाहर हो जाए, जब अवाम की भी ताकत खत्म हो जाए, तो तब वो इस्तेमाल किए जाते हैं। माजी में क्या होता था, वो हम साथ साथ इस्तेमाल कर लेते थे ताकि हमें पॉलिटिकल माइलेज मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के खजाने इस वक्त भरे हुए हैं और मजीद अच्छे होंगे। हमारी बरामदात भी अच्छी होगी, रेमिटेंसेज भी होगी। इस वक्त हमारी दरामदाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, वो आ रही है मशीनरी। और मशीनरी की दरामद से जो है हमारी जो है एक तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगी। जैसे मैंने अभी 2 वीडियो में भी ये बात की, फिर ये बात करूंगा, इस साल हमने ज़्यादा मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान में असेंबल किए हैं, पहले हम दरामद करते थे। इसी तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर से मंगाते हैं, जो इंशाल्लाह ये मशीनरीज आ रही है तो यहाँ बनना शुरू हो और हमारी बरामदात भी बढ़ेगी। तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। पाकिस्तान की मईशत जो इस साल हुई है उससे कदरे बेहतर मुझे नज़र आ रही है अगले साल। और आखिर में मैं थोड़ा सा आप लोगों को याद दहानी करा दूं कि एक हमारी जो डॉलर की कीमत है वो पिछले 2 साल से उसमें इस्तेहकाम है। अगर आप मेरे से पूछें तो
एग्जैक्टली 2 साल पहले हमारे डॉलर की कीमत थी 166 रुपये पर डॉलर, और फिर उसके बाद हमने देखा कि वो जो है, अगर मैं तारीख भी आपको बता देता हूं कि आप देख लीजिएगा, 27 जून 2019 को हमारे डॉलर की कीमत थी 165 रुपये के करीब, फिर वो कम होके 155 है, और पिछले साल फिर यही एपिसोड रिपीट हुई। 7 अप्रैल को हमारा जो डॉलर था वो 168 रुपये के करीब पहुंच चुका हुआ था। और मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूं कि 7 अप्रैल 2020 को 168 रुपये डॉलर था, और वहां से कम होकर 153 हुआ। तो पिछले 2 सालों में हमारा रुपया तो 168 रुपये तक 2 साल पहले पहुंच चुका था। स्टेट बैंक ने उसको इतने अच्छे तरीके से मैनेज किया, जब अच्छे हालात थे तो उसको फिर नीचे लेकर आया, उसको मजबूत कराया, और जब देखा कि हालात बिगड़ रहे हैं तो उसको आहिस्ता आहिस्ता गिरावट के, ताकि मैशी इस्तेकाम हो। इसकी मैं मिसाल आपको ऐसे देता हूं कि अगर आपका लगे कि पेट खराब होना शुरू हो गया है तो आप अपनी खुराक को कम कर देते हैं और अपनी खुराक को परहेजी कर देते हैं, और जब आप तंदुरुस्त और तवाना होते हैं और आप एनर्जेटिक होते हैं तो आप खेलों के मैदान में जाके खेलते हैं, और फिर आपको ज़्यादा भूख लगती है तो आप खाते पीते भी हैं। तो इसी तरीके से अब हमारा एक्सचेंज रेट काम कर रहा है। तो जो ये समझ रहे हैं कि जब अब यहाँ से रुपए की परवान ऊपर की तरफ होगी, हो सकता है हो जाए 1-2 रुपए, लेकिन जो मेरा कहना है, जो आप इसको नोट भी करें, कि ये वापस भी नीचे जा सकता है। जैसे ही ये आलमी मार्केट में इन कमोडिटीज़ की कीमतें नीचे शुरू हुई होना, जिस दिन हमारी कोरोना से रिलेटेड वैक्सीन और अद्वियात कम आना शुरू हुई, हमारी बरामदात बढ़ना शुरू हुई। तो पाकिस्तान की मईशत इस वक्त कोई क्राइसिस में नहीं है, जो एक वबाल मचाया गया है। अफगानिस्तान का एक पॉलिटिकल लिंक है, वो भी जो है आज शायद उसकी हुकूमत का ऐलान हो जाए, तो वहाँ पे भी स्टेबिलिटी शुरू हो जाएगी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मुझे ऐसा लगता है अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान के लिए एक दूसरा 9/11 आने वाला है, जिसमें बेशुमार जो है पाकिस्तान पे करामात आई थी बाहर से, लेकिन हमने उस वक्त ज़ाया कर दी थी। ये पैगाम मेरा प्राइम मिनिस्टर के लिए और वजीर ख़जाना के लिए डायरेक्ट है। अगर ऐसी कोई चीज़ें होती हैं तो उसको हमने अपनी माशी इस्लाहात, हमारा जो स्ट्रक्चरल गैप है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेफिसिट है, उसको ब्रिज करने के लिए करना है। बाकी ये कि आप तसल्ली रखें, हर चीज़ अच्छी है, बाहर के हालात हैं उसको देखते हुए हम अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। जैसे वो हालात बेहतर होंगे हम वापस दूसरी तरफ एडजस्ट करना शुरू कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।